So, yesterday we talked about land resources, and today's topic of discussion is soil resources. So, we'll talk about how soil is a resource and how is it helpful for us. Okay, so as you all know, resource is something which is of our use, which satisfy our need. So, don't you think soil is also a resource? Because everything that we get it from plants. Either it is clothes, food, wood, fiber, we all get it from plants. But where does plant grows? Plants kahan grow karte hain? It grows on soil. So without soil, we cannot imagine crops, we cannot imagine forest, we cannot imagine fibers, firewood, not a single thing. Okay, and the grasses that we see, the flowers that we see, the greenery that we see, okay, it is also just because of the soil. ये भी soil की वजह से ही है. Okay, so we cannot imagine our life without soil. Like मैंने बताया था in the start of this chapter that in this chapter we are going to talk about all the resources which are most important for us. Okay, like land, soil and water resources. So if land is available and soil is not available to us, then how will we do agriculture? How will we produce crop? How will we grow many things? Okay, how will we grow plants? So soil is very useful for us. But do you know how soil is formed? Soil कैसे बनते हैं? Do you have any idea, Ronak? We have read this in the previous class. How land forms? Yeah, yeah. Well, hmm. Very good. Well done, Ronak. Your answer is totally correct. So, soils are formed when rocks are broken into several parts. When it is broken down by the actions of wind, by the actions of rivers, by the action of glaciers, then then the soil is formed. Okay. So, जब भी rocks, अगर rocks weathered होते हैं, weathering क्या होती है? The loosening of rocks. Okay. जब rocks क्या होते हैं? Loosen up होते हैं विंड के एक्शन से, ग्लेशियर के एक्शन से, टेम्परेचर के एक्शन से, देन इट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड मेनी a times when rivers flow down the slope, when river flows down the mountains, they carry the sediments, they erode the rocky particles whenever they hit the rocks. So they carry the small rocky particles and deposit it sediments by sediments. Very good, Ronak. So this is how soil is formed. इस तरह से soil formed होते हैं, इस तरह से soil बनते हैं. Now, do you know we all live on earth, and the upper layer of the earth's crust, you know, we all live on earth's crust. Okay, so there are different layers of the earth, like crust, mantle and core. So the place where we live on earth. Okay, we do not live in the earth. हम earth के अंदर नहीं रहते, हम earth के ऊपर रहते हैं. And the uppermost layer of the earth crust की जो सबसे ऊपरी layer है, जो सबसे uppermost layer है, that is the soil. उसे हम क्या कहते हैं? Soil कहते हैं. Okay, and it is very known fact that soil takes thousands of years to build up. Okay, soil को बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगते हैं. ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक दिन या दो दिन के टाइम प्रोसेस में नहीं बनते हैं. इट इज नॉट फॉर्म्ड इन अ डे और इन अ ईयर. it takes thousands of years to form few centimeters of soil. मतलब कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल के लेयर बनने में लगभग 100 years या 1000 years का टाइम लगता है. ओके, सो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. सॉइल बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है. ओके, और सॉइल, लाइक in your previous or in your junior classes, I think in 4 or 5th you have read about the topsoil, the subsoil and the bedrock. Okay, so what is it? Let's read it again. So suppose this is the part, or this is the vertical section
of the earth. Okay, this is the vertical section of the earth and the uppermost layer of the soil. Okay, this is the uppermost layer of the soil, and this layer is known as topsoil. Topsoil. सो सॉइल की जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज नोन एज द टॉप सॉइल, एंड इट इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्स और इट इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के जो सबसे पतले पतले या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये टॉप सॉइल उससे ही बने हुए होते हैं, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन इट। नाउ व्हाट इज ह्यूमस? See, whenever the plant or any animal dies, okay, they decay with the time, okay, with the passage of time they decay। वो क्या होते हैं? सड़ते हैं, गलते हैं और वो जाकर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, and the material, the substances they release after decaying, जो भी plants and animals decay होते हैं, सड़ते हैं, उससे जो substance release होती है उसे हम humus कहते हैं। ठीक है, और ये ह्यूमस जब सॉइल से मिक्स होती है तो ये क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इट मेक सॉइल फर्टाइल। ओके, सो दैट्स वाई अब देखिए, अगर कोई भी प्लांट की डेथ हो रही है, अगर कोई भी प्लांट या एनिमल डाई हो रहे हैं, देन वो कहाँ पर जाकर रहेंगे? वो इसी टॉप सॉइल में रहेंगे, और डीके होने के बाद, सड़ने के बाद जब वो मिक्सन अप होंगे तो किससे मिक्सन अप होंगे? इसी टॉप सॉइल में जाकर वो मिक्स हो जाते हैं। और दैट्स वाई जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है? इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की भी डिफरेंट लेयर्स होती है, टॉप सॉइल होते हैं, सब सॉइल होते हैं एंड बेडरॉक होते हैं। ओके, सो द टॉप सॉइल इज वेरी वेरी आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ओके, जो टॉप सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉप ग्रो या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल होते हैं, क्योंकि आपको पता है वी कैन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर मोर वेल और इन अ मोर वेल प्लान्ड मैनर इन अ टॉप सॉइल। व्हाई? बिकॉज द सॉइल इज वेरी फर्टाइल। जहां पर मिट्टी उपजाऊ होगी, सॉइल फर्टाइल होगी, वहां पर क्रॉप की प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए टॉप सॉइल क्या होते हैं? सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं और आइडियल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ये किससे बने हुए होते हैं? लाइक अगर कोई एक रॉक डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में डिवाइड हो रही है, देन इट इज नॉट सर्टेन और इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हर एक जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं सभी एक ही साइज की होंगी। कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ कोरस पार्टिकल्स हो सकते हैं और कुछ बड़े पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना? So that's why the topsoil is made up of very fine particles of rock. Rock की जो सबसे छोटे छोटे particles होते हैं ये उनसे बनते हैं। Okay, understood? And why is it very fertile? क्यों ये fertile होती है? Because the organic matter which is derived from the plants and animals, plants और animals से जो organic matter, that means जो humus collect होता है, वो जाकर top soil से mix हो जाते हैं, जो इसे fertile बनाते हैं। Next comes up, this is the first layer of the soil. Okay, Ronak, this is the first layer of the soil, and the second layer is subsoil. The second layer is what? Subsoil. Now this soil is made up of the porous rock particles। अब ये porous rock particles क्या होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा साइज में बड़े नहीं होते हैं रॉक पार्टिकल, जो क्या होते हैं? मीडियम साइज होते हैं। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ी दरदरी होती है। आपने देखा होगा कोई मिट्टी या कुछ काइंड ऑफ सॉइल जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं, सॉफ्ट होती है और उसमें आपको रॉक के पार्टिकल्स फील नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे रॉक्स, कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जो जहां पर क्या रॉक्स के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रॉक पार्टिकल से जो बनते हैं सॉइल्स, उसे हम क्या कहते हैं? सब सॉइल। सो इन द लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल इज सब सॉइल, where the soil is made up of coarse grained rock material। coarse grained rock material से इस तरह के सॉइल बनते हैं। सब सॉइल में किस तरह के रॉक्स किस तरह के सॉइल होते हैं? जो कि रॉक के कोरस ग्रेन
रॉक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ओके, एंड देन कम्स weathered rock or bedrock. इसे this is the last layer of the this is the last layer of the soil. Okay, अब देखिए बेड रॉक, यहाँ पर जो सॉइल होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पत्थर के रॉक के क्या होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट कैन नॉट होल्ड वाटर, ओके, द वाटर कैन नॉट सीप इनटू इट। अब सीप का मतलब क्या होता है, लाइक आपने एक स्पॉन्ज लिया, ठीक है, आप उसे जब वाटर में डिप करते हो, जब वाटर में उसे डुबाते हो, वो क्या करती है, जितनी भी वाटर होती है उसे क्या करती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। बट बेडरॉक में बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स होने की वजह से इस लेयर में जो भी सॉइल होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को सीप इन नहीं कर पाते हैं, वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, विच लेयर ऑफ द सॉइल कैन ऑब्जर्व वाटर वेल, कौन सी लेयर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को सीप इन कर पाएगी, ऑब्जर्व कर पाएगी, टॉप सॉइल, सब सॉइल या बेड रॉक? नो नो, सबसे ज्यादा कौन अब्सॉर्ब कर पाएगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कौन नहीं कर पाएगी। आप एक पत्थर को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप एक रॉक पार्टिकल्स को जो साइज में थोड़े बड़े हैं, आप उसे जाकर अगर किसी वाटर के कंटेनर में आप डालोगे तो वो वाटर को ऑब्जर्व कर पाएगी, बताइए आप मुझे, वो वाटर को ऑब्जर्व कर पाएगी? नो। सो bedrock is the layer of the soil where water do not get seep down. Okay, water क्या seep down नहीं होते हैं, ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन टॉप सॉइल क्या होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, इसलिए सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर सीपिंग कैपेसिटी इसी टॉप सॉइल में होती है। ओके, और इसीलिए टॉप सॉइल क्या, टॉप सॉइल देखिए इट इज आइडियल बिकॉज इट कैन सीप वाटर वेरी इजिली, वाटर को बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर रॉक के बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े नहीं होते हैं। और बेडरॉक सबसे कम वाटर सीप कर पाती है क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल होती है, इस लेयर में जो सॉइल पाई जाती है वो क्या, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं, रॉक के पीसेस होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वाटर सीपिंग नहीं कर पाती है। अंडरस्टूड? is it clear? Okay, now see these top soil, subsoil, ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना, top soil, subsoil and bedrock, these are the horizons of the soil. इसे हम soil के horizons या फिर layers भी कहते हैं। Understood? So if anyone ask you, do you know what are the horizons or which are the horizons of soil, तो आपका आंसर क्या होगा, yes I know there are 3 horizons of soil and they are top soil, subsoil and bedrock। हाँ, मैं जानता हूँ कि कौन कौन से सॉइल के हॉरिजन होते हैं, टॉप सॉइल होते हैं, सब सॉइल होते हैं एंड बेडरॉक होते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो वर्टिकल सेक्शन मैंने लिया है ना, वेयर आई मेड यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से लेयर है, इसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसे क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। So the vertical section where I have discussed these layer of the soil is known as soil profile. इसे क्या कहते हैं, soil profile. Understood? Is it clear? Okay. So if you have any doubts, then you can ask me. Any doubts? Okay. Now let's understand factors affecting soil formation. किन किन फैक्टर से, किन किन कारणों से सॉइल की फॉर्मेशन अफेक्ट होती है, दैट मीन्स कहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन जल्दी होती है, रैपिडली होती है, और कहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्लो होती है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से सॉइल की फॉर्मेशन हैम्पर होती है या फिर स्पीडन अप होती है, ठीक है, रैपिड होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ वी will come to know many types of soil। हम बहुत सारे soil के types को पढ़ेंगे, like regular soil जिसे black soil भी हम बोलते हैं, laterite soil, red soil, mountainous soil। so अब देखिए the texture and composition of the soil, the texture and composition। अब texture क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, texture and composition of soil। see अगर कोई एक soil दिखने में जैसी है, अपीयरेंस उसकी कैसी है, ओके, इफ इट इज कोरस ग्रेन, मैं उसे बोल सकती हूँ कि ये जो रॉक है
सॉरी ये जो सॉइल है वो क्या है, कोरस ग्रेन्ड है, यहाँ पर जो रॉक के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बड़े बड़े हैं। तो ये उसकी टेक्सचर हुई, ठीक है। अभी जैसे मैंने टॉप सॉइल में क्या बताया, द टॉप सॉइल इज द लेयर ऑफ द सॉइल वेयर द सॉइल इज वेरी फाइन, ओके, इट इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो सॉइल क्या है, बहुत ही फाइन है, बहुत ही सॉफ्ट है, जहां पर वाटर सीपिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, उसकी टेक्सचर है, मतलब अपीयरेंस कैसी है सॉइल की, सॉइल दिखने में कैसे है, ये टेक्सचर। और कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। सी इन द सॉइल देयर आर मेनी मिनरल्स विच आर फाउंड, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के हेल्प से ही अपनी फूड को बनाते हैं, ओके। दे ऑल्सो यूज द मिनरल्स विच इज फाउंड इन द सॉइल। वो क्या करते हैं, अपने रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वो मिनरल्स को और वाटर को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन मीन्स क्या, कि कौन कौन से मिनरल्स किसी सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये जो टेक्सचर और कॉम्पोजिशन है, ये किस पर बेस्ड होती है, कैसे हम कैसे बता सकते हैं कि किस तरह की सॉइल किस तरह के रॉक से बनेगी, ये टेक्सचर डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल से। अब देखिए पेरेंट मटेरियल क्या होती है, ये वैसी मटेरियल होती है जिससे सॉइल बनते हैं, ओके। सो द मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड is known as what, it is known as parent material। इसे क्या कहते हैं हम, पेरेंट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर, सो द फर्स्ट फैक्टर विच affects the soil formation is parent material। अब देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे रॉक्स सॉइल बन सकते हैं, लाइक sediments, okay, like if river is flowing it will carry the sediments and will deposit it in the lower layer, ओके हमने पढ़ा था ना, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। सो अगर रिवर फ्लो कर रही है तो वो अपने साथ क्या बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आएंगी और उसे लोअर कोर्स में आकर क्या करेंगी, डिपॉजिट्स करेंगी लेयर बाय लेयर। अब इस तरह से जो सॉइल फॉर्म होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा फाइन ग्रेन्ड होगी, उसकी टेक्सचर क्या होगी, दिखने में कैसे होंगे, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फाइन ग्रेन्ड होंगे, पतले पतले, जी पतले पतले सॉइल्स होंगे, और जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी, ओके। अब देखिए बहुत सारे रॉक्स जो होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, डार्क कलर्ड होते हैं। डार्क कलर्ड मतलब समझ रहे हो, मतलब लाइक ब्राउन कलर, ओके, इस तरह के गाढ़े गाढ़े कलर के जो रॉक्स होते हैं, इनसे जो सॉइल बनते हैं ना, वो क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज रिच इन आयरन, आयरन कंपाउंड्स, मतलब उनमें क्या होते हैं, आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए किसी भी एक डार्क कलर्ड के वेदरिंग से, डार्क कलर्ड रॉक की वेदरिंग से अगर कोई एक रॉक सॉइल बनती है, तो वो क्या होती है, आयरन कंपाउंड्स में रिच होती है। नाउ हाउ वी कैन से दैट, देखिए जितने भी डार्क कलर्ड रॉक्स होते हैं, लाइक जो ब्राउनिश कलर रॉक्स होते हैं, अगर वो लूजन अप होते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, ठीक है, ग्लेशियर्स, जिनके भी एक्शन से वो लूज होते हैं, और उससे जो बनने वाली सॉइल होती है वो किस में रिच होती है, आयरन कंपाउंड में रिच होती है। अब देखिए इससे इसकी कॉम्पोजिशन हमें पता चल रही है कि अगर एक पेरेंट मटेरियल, मतलब जिससे सॉइल बन रही है, वो अगर डार्क कलर्ड है तो उसमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है। आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होने से क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी सॉइल जिनमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कभी आपने लाल मिट्टी देखी है, रेड सॉइल आपने देखा है कभी, वो क्या होते हैं ना, आयरन ऑक्साइड में रिच होते हैं, मतलब उसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और कभी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिले तो आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना, आप उस मिट्टी को लेकर आना, ठीक है। और उस मिट्टी में आप जब पानी डालोगे, व्हेन यू फिल वाटर विथ इट, और आप उसके ऊपर पानी डालोगे, देन वो क्या वाटर को सीप नहीं कर पाएगी। जनरली क्या होता है, हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो उसे सोख लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन इस तरह की जिस सॉइल में आयरन की कंटेंट ज्यादा होती है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप क्या देखोगे, वो वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो जा रहा है,
आप एक ऐसे कंटेनर में लेना जहां पर नीचे क्या है, कहीं ना कहीं होल है। आप देखोगे क्या, जितना भी पानी आपने डाला उसका कुछ ही अमाउंट वो अपने अंदर होल्ड कर पाएंगे, सीप कर पाएंगे, अब्सॉर्ब कर पाएंगे, और बाकी जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा उस होल से। ठीक है, सो दैट्स हाउ द कॉम्पोजिशन मैटर्स। कॉम्पोजिशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है किसी भी सॉइल के लिए। ठीक है, अब हम सॉइल को यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और वहां पर वो वाटर को सीप इन ही नहीं कर पा रही है, अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रही है, तो प्लांट की जो वाटर नीड्स है, मतलब क्या वो वाटर अब्सॉर्ब कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर सॉइल वाटर को होल्ड कर पाएगी तभी ना वो रूट से उसे ऑब्जर्व करेंगी। सो दैट्स हाउ द rocks which are formed from the soil which are formed from the dark colored rocks, they are rich in iron compounds। जितने भी dark colored rocks होते हैं उनसे बनने वाले जो भी मिट्टी होती है उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन की अमाउंट ज्यादा होती है, जिस वजह से वो आइडियल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। ओके, अब वेयर एज जितने भी ये लाइट कलर्ड रॉक्स हैं, लाइट कलर्ड मतलब जस्ट ऑपोजिट टू डार्क कलर। ठीक है, जो भी लाइट कलर, लाइक आपने कभी देखा होगा येलोइश काइंड ऑफ रॉक, पीले कलर के पत्थर आपने देखे होंगे। सो जब उनकी वेदरिंग होती है, जब वो लूजन अप होते हैं और उनसे जो रॉक्स बनते हैं, दे आर मोर सुटेबल देन दिस dark colored rocks or the soil which is formed from the dark colored। okay, जो भी rocks बनते हैं लाइट कलर्ड सॉइल, जो भी बनते हैं लाइट कलर रॉक से, वो क्या होते हैं, आइडियल होते हैं फॉर डूइंग एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, फाइन ग्रेन्ड होते हैं, ऑल्सो दे आर वेरी रिच इन होल्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, अंडरस्टूड। डार्क कलर्ड रॉक से बनने वाली जो भी सॉइल होती है वो क्या होती है, उनमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होती है, जिस वजह से वाटर वो वाटर होल्ड नहीं कर पाती है। वेयर एज उसी के कॉन्ट्ररी अगर मैं देखूं, लाइट कलर जो भी रॉक्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जी, अब देखिए, आपने कभी वॉल्केनिक रॉक सुना है? So our earth, inside our earth there is magma floating। okay, magma है हमारे अर्थ के इंटीरियर में, in the mantle or in the core region। okay, upper mantle and lower inner core में, outer core में मैग्मा फ्लो कर रही है। okay, और ये मैग्मा जब अर्थ सरफेस में आती हैं तो क्या होती है, दे आर नोन एज लावा। ये क्या, लावा से जब मैग्मा अर्थ सरफेस के बाहर निकलती हैं तो उसे लावा कहते हैं, वहां पर वो मैग्मा हम नहीं कहते उनसे। अब ये जब लावा ठंडी होती है, ठीक है, व्हेन दे गेट कूल डाउन, व्हेन दे सॉलिडिफाई ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ सरफेस पे सॉलिडिफाई होते हैं, ठंडे होते हैं, देन दे फॉर्म अ काइंड ऑफ रॉक विच इज नोन एज बसाल्ट। ओके, विच इज नोन एज बसाल्ट। ओके, सो हमारी जो वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न रीजन समझ रहे हो, महाराष्ट्र की एरिया, गुजरात की एरिया, ओके, ये सभी जो प्लेसेस हैं यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, जो लावा से बनने वाले रॉक्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब देखिए, जब ये बेसाल्टिक रॉक वेदर्ड होती हैं, मतलब व्हेन दे गेट लूजन अप, व्हेन दे गेट लूजन अप, व्हाट हैपेंस, क्या होती है, इनसे बनने वाली जो सॉइल होती है वो क्या होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ओके, ब्लैक सॉइल और रेग्यूर सॉइल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल और रेग्यूर सॉइल। ओके, अब देखिए यहाँ पर पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट मटेरियल मींस व्हाट, जिससे सॉइल बनती है। तो यहाँ पर पेरेंट मटेरियल क्या है, हमारी बेसाल्ट, और बेसाल्ट से बनने वाली जो भी रॉक होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, जिस वजह से, जी, और इस तरह से बेसाल्ट से बनने वाले जो रॉक सॉइल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल और रेग्यूर सॉइल। आपने कभी सुना है कि गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होती है? क्यों होती है, कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब काली मिट्टी में कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए महाराष्ट्र और
गुजरात, ये दो ऐसे प्लेस है जहां पर कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर बेसाल्टिक रॉक है। कौन सी रॉक्स है वहां पर? बेसाल्टिक रॉक है। और जब ये बेसाल्टिक रॉक जब ये बेसाल्टिक रॉक से सॉइल बनती है, तो वो कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल और रेग्यूर सॉइल होती है, जिस वजह से वहां की मिट्टी क्या होती है, वहां की सॉइल क्या होती है? बहुत ही फर्टाइल होती है। अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड किस तरह से पेरेंट मटेरियल के डिफरेंस में, ऐसा नहीं है कि हर रॉक से बनने वाली जो सॉइल होती है वो एक ही तरह की होती है, उसकी टेक्सचर, उसकी कॉम्पोजिशन एक ही तरह की होती है। अभी जैसे मैंने बताया आयरन, मैंने बताया डार्क कलर्ड रॉक से जो भी सॉइल बनते हैं वो रेड कलर के होते हैं, मोस्टली रेड कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, लाल मिट्टी जिसे बोलते हैं। तो देख रहे हो टेक्सचर में चेंज आया ना, पेरेंट मटेरियल के चेंज से टेक्सचर में भी तो चेंज आया। डार्क कलर्ड वाले रॉक से बन रही थी इसलिए वो रेड कलर की थी, बेसाल्टिक रॉक से बनने वाली जो रॉक सॉइल थी वो क्या थी? ब्लैक कलर की थी। टेक्सचर में डिफरेंस है, अपीयरेंस में डिफरेंस है, दोनों दिखने में अलग अलग होते हैं ना। Okay, so that's how you have to know, you have to understand the concept that on the basis of the parent material the soil is fertile or infertile। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह की पेरेंट मटेरियल होगी जिससे सॉइल बनती है उससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह की सॉइल होगी। ओके ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स रौनक, जो मैंने बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मैंने पेरेंट मटेरियल डिस्कस किया है, सो आप मुझे बता सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, so the next step is what? We'll talk about the other factor. Okay, for that I am going to share a screen. Okay, so the next topic that we are going to discuss, one second, Ronak, hold on. Okay, Ronak, here the file is not supporting. Okay, so I am telling you, मैं आपको screen share नहीं कर रही हूँ। So the next factor which affects the soil formation is climate. Okay, क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह की सॉइल फॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। सपोज ऑफ अ प्लेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस विच इज वेरी वार्म, ओके, जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और जहां पर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, आपको पता है कैसे रॉक्स जो होते हैं लूजन अप कैसे होते हैं? ड्यू टू द हीट एंड ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट। ओके, जितनी ज्यादा किसी प्लेस में मॉइस्चर होगी, जितनी ज्यादा वहां पर हीट होगी, वहां की रॉक्स क्या होंगी? उतनी ही जल्दी लूजन अप होंगी, है ना। सो अब बताइए कहाँ पर रॉक्स की फॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए? इन द प्लेस वेयर देयर इज annual rainfall is very high, or the place where the annual rainfall is very low। कहाँ पर की सॉइल फॉर्मेशन जल्दी होगी, रैपिड कहाँ होगी? एनुअल, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल लो होगी। नो नो, एनुअल रेनफॉल हाई होगी, बिकॉज यू नो कि जब भी बारिश होती है इट exerts pressure on the rocks। ये क्या करते हैं? रॉक्स पर प्रेशर डालते हैं और इससे क्या होती है? रॉक्स लूजन अप होती है।
ठीक है। और जहां पर भी okay, am I audible, Ronak? Yes, teacher.